Dear friends, this is your course instructor Asif Javed. This is episode number 3 of the lecture series that I am recording on linear algebra. So far we have discussed about what is a vector space, and before that I told you what do we mean by field, and when we were actually explaining the structure of field, then I also explained to you what are the various components that constitute the structure of field. I'm essentially talking about group structure and ring structure because those were the basic structures that led to the concept of field, and with the help of field I defined what do we mean by vector space. In the last lecture we had some examples, so let us explore some more examples. Now next thing that I would like to tell you about vector space is that suppose I am taking a vector space K and I am taking a field F. Suppose that K is also a field and I am taking a vector space in the fashion that I am taking a field over the field. So one thing I want to convey to you guys is that this is actually you will take it as a generalization that whenever we are taking a field over its subfield, that means when we are defining a vector space, when we are taking a structure when we are taking a structure which is a field and we are taking that field over its subfield, जब हम किसी भी फील्ड को उसकी सब फील्ड पे डिफाइन करते हैं तो वो हमेशा वेक्टर स्पेस बनती है। कोई भी फील्ड अपनी सब फील्ड पे वेक्टर स्पेस होती है। तो ये है हमारा रिजल्ट दैट एवरी फील्ड ओवर इट्स सब फील्ड इज़ ए वेक्टर स्पेस। इसको प्रूव करना काफ़ी इजी है। देखिए अगर आप इसकी इंटरनल कंपोजिशन की बात करते हैं तो इंटरनल कंपोजिशन तो वैसे ही हो जाएगी क्योंकि ये खुद फील्ड है और फील्ड में फील्ड तो होता ही है एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, तो वो हो जाएगा। रही बात स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है आपको, आप किसी भी स्केलर को ले रहे हो वो उसकी सब फील्ड है, आप उसे किसी भी, अब अगर वो सब फील्ड है इसका मतलब वो उसी का सबसेट है। अब उसको आप किसी भी वेक्टर के एलिमेंट से वो जो स्ट्रक्चर आप ले रहे हो फील्ड उसके किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब आप उसके ही एलिमेंट को उसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो दैट मीन्स एक्सटर्नल कंपोजिशन भी हो जाएगी। व्हेनेवर यू आर मल्टीप्लाइंग एनी एलिमेंट ऑफ अ फील्ड with the elements of its subfield, that means you are actually multiplying the elements of that field only, and obviously field के अंदर तो वो property तो होती है, it is a what we call as closure property under multiplication, तो उसकी help से external composition भी हो जाएगी। रही बात दूसरी properties को, तो वो properties जो हैं वो हो जाएंगी सब की सब, वो satisfy हो जाएंगी। we will make use of the field properties, so with the help of field properties we can easily prove the other properties as well। तो ठीक है बच्चे, ये एक चीज़ क्लियर हो गई कि कोई भी फील्ड अगर हम किसी सब फील्ड पे लेते हैं, whenever we take a field over its subfield then it always is a vector space। एग्जाम्पल आप देखिए, सपोज आई एम टेकिंग अ फील्ड R over its, because every field is a subfield of itself, so that means R is a vector space over R। Similarly if we take Q over Q will be a vector space, C over C will be vector space। Let me take a subfield of R, Q जो है वो क्या है R की subfield, so that means if I take field R over its subfield, so it's going to be vector space here, this one। Similarly if you see otherwise, other way around is not going to be true। कोई भी वेक्टर स्पेस, कोई भी फील्ड जो है अपनी सब फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस होती है, लेकिन कोई भी सब फील्ड अपनी फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस नहीं हो सकती, और इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। देखिए बच्चों आप ऐसा कीजिए ना, अब जब जो फील्ड होती है वो तो बड़ी होगी सब फील्ड से, उसके बराबर भी हो सकती है बट उससे बड़ी भी हो सकती है। तो जब आप उसके उस स्केलर से, जब आप उस फील्ड से कोई भी स्केलर लेंगे और उस स्केलर को आप जिसको आप वेक्टर स्पेस प्रूव करना चाहते हो उसके किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ज़रूर आपको ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल आप यही ले लीजिए, जैसे रैशनल नंबर को अगर आप R के ऊपर वेक्टर स्पेस प्रूव करना चाहते हैं, तो सपोज़ मैं एक नंबर लेता हूँ R में से √3। अब मैं √3 को किसके साथ करता हूँ, किसी रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई, सपोज़ 2 के साथ, तो एक्सटर्नल कंपोजिशन के हिसाब से √3 इंटू 2 भी किसके अंदर होना चाहिए था, Q के अंदर, लेकिन 2 √3 इज़ ए रैशनल नंबर, दिस इज़ नॉट इनसाइड Q।
तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो होल्ड नहीं करती है जब हम एक सब फील्ड को उसकी फील्ड के ऊपर लेते हैं। सो इट विल नेवर बी अ वेक्टर स्पेस। सो ये वेक्टर स्पेस नहीं होगी, ठीक है। सिमिलरली यू कैन टॉक अबाउट सी आवर सी, this is also a vector space. See our Q, this is a vector space. See our this Z, that is integers, this is this a vector space? This is not going to be a vector space. Why is this not going to be a vector space? Because Z जो है वो फील्ड है ही नहीं, और वेक्टर स्पेस जो है वो किसके ऊपर डिफाइन होती है, वो हमेशा फील्ड के ऊपर, और Z जो है वो फील्ड नहीं है। अब आप पूछेंगे कि Z फील्ड क्यों नहीं है? Z फील्ड इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं मिलेगा। सपोज़ आप 2 लेते हो तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 होना चाहिए, बट वो उसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी उसमें सेटिस्फाई नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। Q√2 लीजिए, जो Q√2 होता है ये फील्ड होती है, और ऑब्वियसली ये सब फील्ड है C की, तो ये वेक्टर स्पेस हो जाएगी। Q√7 जो है ये फिर से फील्ड है, R की सब फील्ड हो जाएगी, तो R आवर Q√7 वेक्टर स्पेस हो जाएगा। Q आवर R वेक्टर स्पेस नहीं होगा, अगेन सब फील्ड अपनी फील्ड के ऊपर नहीं हो सकती वेक्टर स्पेस। Q आवर C वेक्टर स्पेस नहीं होगी, बिकॉज C अगरचे दोनों फील्ड्स हैं लेकिन Q सब फील्ड है C की, तो फिर से कोई भी सब फील्ड अपनी फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस नहीं हो सकती, एक्सेप्ट जब वो दोनों सेम होंगी, वो वाला केस एक्सक्लूड करके मैं कह रहा हूँ। Z2 आवर Z2 वेक्टर स्पेस हो जाएगी। ये फाइनाइट फील्ड्स हैं, इनके बारे में मॉडर्न अलजेब्रा में आपने अच्छे से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो कमेंट्स में मेंशन कीजिए, मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, उसके बाद आप देखिए ZP50 आवर ZP, ऑब्वियसली दिस विल बी अ वेक्टर स्पेस, बिकॉज फिर से एक फील्ड जो है अपनी सब फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस होगी। Z2 आवर Z3 नहीं होगी वेक्टर स्पेस आपके पास, बिकॉज फिर से वही मसला आ रहा है कि फील्ड जो है अपनी सब फील्ड अपनी फील्ड के ऊपर जो है वेक्टर स्पेस नहीं हो सकती। सब फील्ड जो है किसी फील्ड के ऊपर जो जिसकी वो सब फील्ड है उसके ऊपर वेक्टर स्पेस नहीं हो सकती। Z3 आवर Z2 जो है ये भी वेक्टर स्पेस नहीं होगा। ZP आवर ZQ जो है P इज़ नॉट इक्वल टू Q आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स, ठीक है। तो अगर ये डिस्टिंक्ट प्राइम्स होंगे तो ये वेक्टर स्पेस नहीं होगी। वी कैन ईजिली एक्चुअली प्रूव दैट। तो ये हो गए आपकी एग्जांपल्स इसकी। और आपने एक नोट याद रखना है कि डायमेंशन ऑफ, अगर किसी भी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन आवर फील्ड एफ जो है n होगा, तो वो वेक्टर स्पेस फील्ड की पावर n की तरह बिहेव करेगी। अगर किसी भी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन n है तो वो किस तरह की बिहेव करेगी? इट विल एक्ट एज अ फील्ड मल्टीप्लाइड n टाइम्स। इसका मतलब उस केस में डायमेंशन ऑफ v जो है दैट विल बी सेम एज डायमेंशन ऑफ f raised to power n, that is it is actually n tuple sort of field. Z7 over Z11, again this is not a vector space, Z11 over Z11 वेक्टर स्पेस हो जाएगी फील्ड ओवर फील्ड। अच्छा, अब एक दूसरी वेक्टर स्पेस देखिए आप, इसी तरह से अगर आप क्या ले लें, आप एक सेट ले लें m क्रॉस n मैट्रिसेस का, आवर फील्ड f, और फिर आप उसको आवर फील्ड देखें तो ये वेक्टर स्पेस हो जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप कोई भी A और B सेट ऑफ m क्रॉस n मैट्रिसेस आवर फील्ड f ले लें तो उनका सम जो है वो भी इसी में बिलोंग करेगा, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज उनका सम जो है उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो भी कहाँ से आ रहे होंगे, वो भी फील्ड से आ रहे होंगे। सो दैट मीन्स वो जो नई मैट्रिक्स होगी उसके एलिमेंट्स भी फील्ड से आ रहे होंगे, तो अगेन वो उसी का एलिमेंट होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आप देखिए, अगर आप किसी भी एलिमेंट को जो उसके अंदर प्रेजेंट है एलिमेंट, आप फिर से उसी फील्ड के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली फील्ड के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो फिर से उसी फील्ड के एलिमेंट होंगे बाई क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगी। सिमिलरली देखिए, मेन तो यही दो चीज़ें होती हैं, जब ये दो चीज़ें हो गई तो बाकी चीज़ें ट्रिवियल होती हैं प्रूव करनी, बिकॉज आपको पता है मैट्रिसेस अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप बनाते हैं, और रही बाकी वो प्रॉपर्टीज़ लैम्डा इंटू V1 प्लस V2 या V1 प्लस V2 इंटू लैम्डा, और भी एक दो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, दोज प्रॉपर्टीज़ आर वेरी सिंपल टू प्रूव। तो वो प्रॉपर्टीज़ आप इजीली देख सकते हैं, वो भी प्रूव हो जाएंगी। तो इस तरह से ये वेक्टर स्पेस हो जाएंगी। अब आप क्या कीजिए, आप f चेंज करते रहिए तो आपको वेक्टर स्पेसेस मिलती रहेंगी। जैसे अब ये देखिए, दिस इज़ ए वेक्टर स्पेस,
दिस इज़ ए वेक्टर स्पेस, बट ये वेक्टर स्पेस नहीं होगी। देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई है, यहाँ पे गड़बड़ ये हुई है कि ये Q है और यहाँ पे R है। ये फील्ड का सेम होना ज़रूरी है, या अगर सेम नहीं भी हो तो जो ये वाली फील्ड है, बाहर वाली फील्ड जो है वो उसकी सब फील्ड होनी चाहिए, बाहर सुपर फील्ड नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्योंकि बाहर ये सुपर फील्ड है तो ये नहीं होगी वेक्टर स्पेस। तो इस तरह से आप ये भी देख लीजिए। दूसरी स्पेस एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्पेस होती है, दैट इज़ पॉलिनोमियल स्पेस। पॉलिनोमियल स्पेस कुछ इस तरह की होती है, ये पॉलिनोमियल्स इसमें होंगे। दिस इज़ ए स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब इसके जो ये कोएफिशिएंट्स हैं पॉलिनोमियल के, ये फील्ड से आ रहे होते हैं, तो ये भी वेक्टर स्पेस बनती है। कैसे वेक्टर स्पेस बनती है ये, फिर से देखिए, वेक्टर एडिशन कीजिए आप। कोई भी दो एलिमेंट्स को जब आप सम करेंगे तो जो नया आपके पास पॉलिनोमियल बनेगा वो भी आपका उसी डिग्री का पॉलिनोमियल, आई मीन जो भी लेस देन इक्वल टू n डिग्री पॉलिनोमियल जो भी होगा, क्योंकि जो उसके कोफिशिएंट्स हैं वो भी उसी फील्ड से आ रहे होंगे, तो ऑब्वियसली वो उसी fx फंक्शन स्पेस में ही वो भी बिलोंग करेगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करेंगे, उस फील्ड के, जिस फील्ड के ऊपर आप उसको ले रहे हैं वेक्टर स्पेस को, तो आप देखिए अगर उसको आप स्केलर से किसी भी पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर मल्टीप्लाइंग ईच कोफिशिएंट विद दैट स्केलर, एंड दैट इज गोइंग टू बी द स्केलर फ्रॉम द सेम फील्ड। सो दैट मीन्स द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल विल अगेन कम फ्रॉम दैट फंक्शन स्पेस x। तो बाकी प्रॉपर्टीज़ इजीली प्रूव हो जाएंगी, तो इस तरह से ये भी वेक्टर स्पेस हो जाएगा। सो दैट इज़ आल्सो ए वेक्टर स्पेस। एक दूसरी वेक्टर स्पेस होती है PNF, दिस इज़ पॉलिनोमियल, दिस इज़ पॉलिनोमियल स्पेस, और ये है आपकी दूसरी पॉलिनोमियल, ये नीचे आइए, फंक्शन स्पेस। फंक्शन स्पेस में क्या होता है आपका, फंक्शन स्पेस में आपके पास फंक्शंस, सिर्फ फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शंस इस तरह से बिहेव करते हैं, नाइसली बिहेव करते हैं। आप किसी भी फील्ड के ऊपर कोई भी फंक्शन ले लीजिए, सो दे विल सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर स्पेस। कोई भी दो फंक्शंस को आप सम ले लीजिए, अगेन दैट विल बी द फंक्शन। इसी तरह से आप किसी भी फंक्शन को इसी स्केलर से मल्टीप्लाई कीजिए, अगेन दिस विल बी द फंक्शन फ्रॉम द फील्ड, सेम फील्ड टू सेम फील्ड। तो इस तरह से ये भी हो जाएंगे और बाकी प्रॉपर्टीज़ तो सेटिस्फाई हो ही जाएंगी। फिर आपके पास सीक्वेंस स्पेस है। सीक्वेंस स्पेस में क्या होता है, इसमें आपके पास सीक्वेंसेस होती हैं जिसके एलिमेंट्स फील्ड से आ रहे होते हैं। अब आप कोई भी दो सीक्वेंसेस को जब सम करोगे, वेन एवर यू विल टेक द सम ऑफ टू सीक्वेंसेस, व्हाट यू आर एसेंशियली डूइंग, यू आर adding the corresponding elements of two sequences, and since those two sequences have elements from the field, and whenever you will add the corresponding elements, you are going to land in the same field. So the new sequence that you are getting, that sequence will have the elements from the same field, so that sequence will again be belonging to the same structure, that is the elements of the sequence will be coming from the same field. So vector addition हो गया। इसी तरह से अगर आप एक सीक्वेंस के एलिमेंट्स को किसी भी फील्ड के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हो, अगेन वो जो नई सीक्वेंस होगी उसके एलिमेंट्स भी उसी फील्ड के होंगे और रिजल्टिंग सीक्वेंस फिर से उसी सीक्वेंस से आ जाएंगे। तो ये कुछ और एग्जांपल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए और ये स्टैंडर्ड एग्जांपल्स है। इफ़ सम गाइज आउट ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर exams like NET or SET or JRF, so they can also refer to these lectures because these lectures are standard lectures. These examples are standard examples, so they can also help you to crack some competitive exams also. So this is all I have from this lecture number 3. In lecture number 4 I am going to tell you one thing, that we will be discussing another important concept in the linear algebra, that is vector subspace, and this is there is a very rich theory of vector subspace in linear algebra. So I will try to cover some part of it in the next lecture. So that's all I have from today's lecture. Thank you so much.